ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਫਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਧੂਰੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ MD ਅਨਿਲ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਨਵਯੁਵਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ MD ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਫਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਫਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫੀਮ, ਚਾਹੇ ਸਮੈਕ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਫਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਵਾਲੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਲੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ, 10 ਸਾਲ ਦੇ, 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ MBS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AC ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो सब तो पहला यही कहना चाहूँगा कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ में उन ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ सही जीवन जीने की कला समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि नशेबाज की सब तो बड़ी समस्या होती है उन्हें जीवन के हर समस्या का, जीवन की हर प्रॉब्लम का वो कोल इक्को ही सलूशन होंदा है, वो होंदा है नशा। कि कुछ भी होया चलो नशा करो। इवन मान लो जे घरे कोई ब्याह है, ब्याह शादी है, कोई त्यौहार है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ त्यौहार शादी ब्याह तब तक शादी ब्याह है नहीं ਜਦੋਂ तक वो अपना नशा पूरी तरह से ना करे। तो असी इसी साइकोलॉजिकली अपने काउंसलर काउंसलिंग के माध्यम से, क्लासा के माध्यम से असी उन्होंने ये समझाने की कोशिश करते कि नशे के बगैर भी इन भावनाओं ਨਾਲ लड़ा जा सकता है, जिया जा सकता है। और सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जैसे आप इनको गाइड कर रहे हैं, वो आप सिंपल एग्जांपल्स देके जो इनकी लाइफ के साथ अटैच होती हैं, उन्हीं के साथ ही कि जो चीज़ें इनको फेस होती हैं, जैसे इनका प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, आप उसी के माध्यम से इनको एक काउंसलर की तरह सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रिहैब में बंदा दोबारा से उसी हालात में ना जाए, उसके लिए आप उसको इतना परिपक्व कर देते हैं, उसका माइंड सेटअप है जो इतना स्ट्रॉन्ग करके यहाँ से भेजते हैं कि वो एक मार्गदर्शक बन जाए और लोगों को भी बताए कि मैंने नहीं भाई, नहीं इस दलदल में अपने नहीं जाना है। देखिए, हम जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे मैं पहले भी 1-2 बार आपसे जब बात हुई है हमारी, तो हम थेरेप्यूटिक कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मोडालिटी है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 देशों में ये ट्रीटमेंट मोडालिटी चलती है। और इस ट्रीटमेंट मोडालिटी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इवन मैं सबसे बड़ी संस्था है न्यूयॉर्क में, अब उसका नाम चेंज हो गया है, मुझे नया नाम याद नहीं, पहले उसको डेट ऑफ इंटरनेशनल कहते थे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन
और अमेरिका की और स्टेट्स में उनके रिहैब्स है, वहाँ का जो स्टाफ है, या मैं भी बाहर जब गया हूँ मैं भी मिला हूँ बहुत सारे रिहैब ओनर से जो रिहैब चलते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो सबसे बड़ी जो एक प्लस पॉइंट है इस थेरेपेटिक कम्युनिटी का, यहाँ का 90% स्टाफ जो होता है वो लोग होते हैं जो लोग खुद कभी इस समस्या से ग्रस्त रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, खाली ये नहीं कि इंडिया में, बदकिस्मती से इंडिया में इसको समझा नहीं जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसको समझा गया है, इस कॉन्सेप्ट को समझा गया है कि रिकवरिंग, इनको बेसिकली पीयर सपोर्ट काउंसलर्स कहते हैं। दे आर मच बेटर काउंसलर्स, मतलब क्योंकि उन्होंने उस समस्या को जिया होता है। बाकी जब हमारे पास बच्चे आते हैं, हम इसी थेरेपेटिक कम्युनिटी मॉडल को यूज़ करते हैं, और हमारा जो सबसे बड़ा फोकस होता है, हमारा होता है बिहेवियर शेपिंग पे, कि आपके व्यवहार ठीक हो, आपका जीवन जीने की शैली जो है, जो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग जब आपका ठीक हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका जो जीवन है उसमें भी बदलाव आने शुरू करेंगे। क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है, इंसानी नेचर ये है कि जब तक वो बदलाव आदमी को खुद नहीं दिखने लग जाए तब तक वो और अग्रसर नहीं होता है। तो हम वो बदलाव उसको लिटरली दिखाते हैं, चाहे वो शुरुआत से आने से लेकर के 1-2 महीने बाद, पहले दिन जो आदमी सवेरे नींद से उठने से उसको आना, क्योंकि घर में उसका आदत होती है 9 बजे उठने की, 10 बजे उठने की, जब वो एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी से होके जाता है तो वही आदमी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो अपने आप बैल का भी इंतज़ार नहीं करता, वो सवेरे 7 बजे उठ गया होता है। तो उसको भी खुद को महसूस होने लगता है कि यार हाँ, ये तो अच्छा लाइफस्टाइल बदल रहा है मेरा, मेरे अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंज आ रहे हैं, मेरी सेहत ठीक हो रही है। घर में उसकी घी दूध की थाली रखी होती थी, वो खाता नहीं था, यहाँ वो अपना लंच का इंतज़ार करता है 1-1.5 बजे कि कब खाना बनेगा। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक जीवन शैली, जैसे आपने बात कही है कि उसकी एक प्लानिंग ज़िंदगी की, कब उसने उठना है, कब मेडिटेशन करनी है, कब खेलना है, जैसे आपने कहा कि उसको हर चीज़ की इंतज़ार, उसको अपने अम्यूज़मेंट की भी इंतज़ार रहती है कि शाम को हमने टीवी देखना है, और वही खुशी है, वही ज़िंदगी जो पहले वो जी रहा होता था एडिक्शन से पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़िया ज़िंदगी जो है। क्योंकि आप लोगों का यहाँ ब्रेकफास्ट की हम बात कर लें तो बहुत बढ़िया आप ब्रेकफास्ट देते हैं, और हर प्रोटीन्स का, और ध्यान रखते हैं कि कैसे उनको रिच डाइट जो है बढ़िया मिले जिसमें फैट्स कम हो। और उसके बाद लंच की बात कर लें, डिनर की बात कर लें, शाम को चाय की बात कर लें, रात को दूध की बात कर लें, या खेलने की बात कर लें, कैरम बोर्ड की बात कर लें। क्या कहना चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे चानन मुनारे आप बन रहे हैं, उनको एक बार जब यहाँ आ जाते हैं तो उनको एक ज़िंदगी जीने की मज़ा, और उनका जब यहाँ से जाते हैं तब भी उनको ये लगता है कि नहीं यार, ये हमारी जान थी, यहाँ पर हमने इतने साल गुजारे हैं। और जैसे जो लोग कहते हैं कि यहाँ एडिक्शन सेंटर में कटाई होती है, मारते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फेक जो है चीज़ें जिनके साथ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि एक आधा कोई सेंटर में कोई बंदा कोई शरारत करेगा, ऐसा कोई ऐसी टेंशन क्रिएट करेगा तो वो तो अलग से बात है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर तो पीसफुल माहौल है। और कैसे आराम से हम लोग, जैसे आपकी क्लास देखी, और भी क्लासें आपकी हमने थोड़े से स्टूडेंट्स के साथ आपको काउंसलिंग करते हुए, उनको गाइड करते हुए देखा, और भी क्लासेज आप लगाते हैं। देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी, पहले तो खाने पीने का हमारा ऊपर वाले की कृपा से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा 21 है, लेकिन ये है कि जो बच्चा यहाँ से जाता है, कम से कम मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, हम कहीं कोई अवेयरनेस नहीं करते हैं। हमारा जो पेशेंट आता है, जो लड़का आता है, वो लड़के को सुन के ही आता है कि भाई जाना है तो फलानी जगह जाना है, उनके पास जाना है। दूसरी बात जो है, हमारी जो ट्रीटमेंट का मेन फोकस है, हम ट्रीटमेंट के माध्यम से लड़कों को, कि देखिए लाइफ क्या है, लाइफ गाड़ी बंगला मकान नहीं है, लाइफ है इमोशंस पे। गाड़ी बंगला बाकी चीज़ें ये तो सब जीवन जीने के सुख है, इसको हम बेसिकली मटेरियलिस्टिक थिंग्स कहते हैं। ये लाइफ नहीं है। हाँ, ये लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो लाइफ का मेन फंडा है वो है आपकी इमोशंस, कि आप अपनी इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं। अब जो एडिक्ट होता है, इसकी इमोशंस को हैंडल करने के लिए एक डिपेंडेंसी बन गई होती है। इसकी जब भी कोई भावना चलती है, उस भावना को रेस्पॉन्ड करने के लिए ये डिपेंडेंट है किसी चीज़ पे।
एक बाहरी वस्तु के ऊपर डिपेंडेंट, जिसको बेसिकली एडिक्शन को एक और नाम कहा जाता है डिपेंडेंसी। इसको आपने सुना होगा, इसको ड्रग डिपेंडेंसी कहते हैं, कि वो आदमी निर्भर है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरह फ्रेमअप किया गया है कि जिसमें आपके इमोशंस हैं। जैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है, एक लड़का नया आता है, वो जनरल वर्कर से बनते 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 कोऑर्डिनेटर बन जाता है। हमारी कन्फ्रंटेशन है, सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब के माध्यम से उस आदमी के व्यवहारों को, तो वहाँ पर वो गुस्सा भी है, शर्म भी है, पेन भी है, दुख दर्द शर्म गुस्सा दीन भावना। हम ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको ये सिखाना चाहते हैं कि तेरे को इन फीलिंग्स के साथ जीना सीखना पड़ेगा विदाउट एनी डिपेंडेंसी, बगैर किसी निर्भरता के। तेरे को गुस्सा आया तूने शराब पी ली, तेरे को शर्म आई तूने जा कर के चिट्टा लगा लिया। नहीं, ये लाइफ नहीं है। लाइफ है कि लाइफ इमोशंस। अब ऐसी नहीं है कि तुम यहाँ से जाओगे इमोशंस नहीं होगी। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से शाम तक यही चलता है, पेन शेम गिल्ट हर्ट एंगर दुख दर्द शर्म गुस्सा हीन भावना पीड़ा खुशी। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा, इंसान इसी पे जीता है। लेकिन इसकी समस्या क्या बन गई है, इसके पास इन सब चीज़ों का जवाब एक ही चीज़ में होता है, वो नशे में। हम ट्रीटमेंट के माध्यम से उस आदमी को इन भावनाओं के साथ जीने की कला सिखा देते हैं। बाकी जो आपने बात करी कुटमार की या बाकी चीज़ों की, देखिए मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि किसी होती होगी या नहीं होती होगी, एब्रप्टली मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ कि हम भी सुनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे आप यकीन कर आप चाहे तो हमारे बच्चों से जो यहाँ से गए हैं, देखिए क्या होता है कि जब आदमी ट्रीटमेंट में होता है शायद वो सच नहीं बोलता है। आप जो हमारे बच्चे यहाँ से गए हैं, जो आज 6-6 महीनों से 8-8 महीनों से साल भर से घर में, आप उनसे जाके पूछ लीजिए। हमारे इस संस्था में गाली देना भी मना, आप एब्यूज़ नहीं बोल सकते। इवन स्टाफ के ऊपर भी ये लागू होता है, मेरे ऊपर भी उतना ही लागू होता है जितने बच्चे के ऊपर लागू होता है। जी सर, आपका धन्यवाद जो आपने हमें कीमती समय दिया। और अभी हम जो 13 साल से 10 साल से और इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, उनसे हम रूबरू कराएंगे। सर आप भी यहीं बैठे हैं और उनके मैं अभी उठता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आकर ही वो सारे तीनों के तीनों अपने शेयर्स करेंगे। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं दिल्ली से, एक्चुअली दिल्ली से हूँ और मैं जी के साथ 22 साल से जुड़ा हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि जब आप उनसे जुड़े तब आप कैसे इंसान थे और आज? मैं पहले एक गंदा नशेबाज था और एक आज अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि वो सफ़र जो आपका 20 साल निकला और अभी आप लोगों को भी काउंसिल कर रहे हैं, और सुधीर सर का जो माइंड है, इनका ये माइंड है कि मैं उन लोगों को जो इस दलदल से निकले हुए हैं, जिन्होंने हर चीज़ को अपने ऊपर सहन किया हुआ है, वो बेटर वे से मेरे बच्चों को साथ में गाइड करते हैं। अभी आप यहीं सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा जो भी बच्चे यहाँ से अपना ट्रीटमेंट लेके गए हैं, अच्छी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। और ट्रीटमेंट ज़रा थोड़ा हार्ड है, इसलिए थोड़ी परेशानी होती है इसके अंदर। आपको कितनी परेशानी आई थी? है जी, मैं तो खैर बहुत दिक्कत अपना, मेरे तो बहुत अप डाउन रहा है जी। और क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को कि कोई डरने की बात नहीं है? नहीं, डरने वाली कोई बात है ही नहीं इसके लोग अंदर। कहते हैं कि चिट्टे वाला मर जाएगा, पेरेंट्स को लगता है। नहीं। जब तोड़ लगती है तो बंदा जब जैसे वो जब तोड़ लगती है ना, वो उसकी एक माइंड सेट होता है कि हाँ भाई मैं चिट्टा नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मरा तो वो कैसे मर जाएगा। मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी मैं जी रहा हूँ। थैंक यू। पहला मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯੂ ਟਰਨ ਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨਿਲ ਬਲ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਮਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਬੱਚਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਤਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੂਥ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਮੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਸੀ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਨਿਲ ਸਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਸ਼ਵਾਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਸੀਗੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। एक बार फिर से सारे दर्शकों को सत श्री अकाल। मैं इसके आज के मौके पे जितने भी पंजाब प्लस के दर्शक हैं उन्होंने थोड़े 2-3 चीज़ें कहने चाहूँगा। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, कहते हैं निप द एविल इन द बड, कि किसी भी बुराई को पहले ही जड़ से खो दो ताकि आगे जाके समस्या ना हो। देखिए हमारा जो लाइफस्टाइल आज की डेट में हो गया है, हम मशीन ज़्यादा बन रहे हैं, इंसान कम। तो मैं सारे माँ बाप, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सारे माँ बाप अपने समय सबको एक बात कहना चाहूँगा, हम अपने बच्चों को इंसान बनाने की कोशिश करें, मशीन ना बनाए उनको। दूसरी बात ये रही कि बदकिस्मती से हमारे समाज में कुछ नशों को एक सामाजिक मान्यता मिली हुई है, जैसे शराब हुई, इन चीज़ों को शराब, या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों पे अफ़ीम को भी एक मतलब बहुत ही माइनर वे में देखा जाता है। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये कोई भी चीज़, चाहे वो अफ़ीम हो, चाहे शराब हो, चाहे वो आप यूपी साइड में जाइए बांग, या जे के साइड में जाइए चरस, ये चीज़ें कोई भी चीज़ें सही नहीं है। हमें शुरुआत में लगता है कि चल कोई गल नहीं है, बियर पी लेंगे ना, बियर पी के आया ना, कोई गल नहीं, लेकिन नहीं, गल है, गल है। आपका बच्चा एक, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस का एक सर्वे कहता है कि अगर एक आदमी, ये मैं आपको 15 साल पहले पुराना सर्वे बता रहा हूँ, NISD का सर्वे है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर एक आदमी 15 से 25 साल की उम्र के बीच में किसी भी नशे का सेवन करता है, इसमें से 10 में से 6 लोग, 60% का रेशो रहता है कि जो 30 तक पहुँचते पहुँचते क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है उस चीज़ का। ये मेरा घर का डाटा नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के, मैं ये 15 साल पुराना डाटा बता रहा हूँ। अब तो इसमें चेंज आ गया होगा, मेरे ख्याल से अब ये 10 में से 8 पे पहुँच गया होगा डेफिनेटली। और दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों पे हम थोड़ा सा नज़र रखें।
मैं कुछ एक दो टिप्स देना चाहूँगा फैमिली मेम्बर्स को। एक तो सबसे पहले अपने बच्चे की मूड स्विंग्स पे ध्यान रखें कि अगर 4 महीने पहले ये बच्चा फैमिली में घुलता मिलता था, उठता बैठता था, अब ये सडनली आप देखोगे कि ये अलग थलग रहने लग गया है, तो ये आपके लिए वार्निंग बेल होनी चाहिए कि क्यों है ये अलग थलग क्यों रह रहा है। दूसरे, लो एपेटाइट या एक्सेसिव एपेटाइट, भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी या ज़्यादा खाने लग गया है। बर्न्ड फिंगर्स, कभी आप अपने बच्चे को गौर से देखें, कहीं पे उसकी ये उंगलियों कहीं पे जली हुई तो नहीं है। कपड़े एक्सेसिव गंदे हो जाने, पहले आप देख रहे थे 6 महीने पहले आपका बच्चा 2 दिन भी शर्ट पहनता था शायद उतनी गंदी नहीं होती, अब आप देख रहे हो कि सडनली एक चेंज आ गया है कि एक दिन में ही बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे होने लग गए। नींद ना आना, सोना नहीं। चौथी बात कि मेमोरी कम हो जानी, कि आप देख रहे हो कि इसको कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ये कुछ इनिशियल स्टेज पे देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा नशा कर रहा हो, लेकिन ये वार्निंग बेल्स है। इन वार्निंग बेल्स को भी अगर हम पेरेंट्स के तौर पे अपने अपने घर में एक वो शेड्यूल बनाए। एक और सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आजकल जो हमारे मोबाइल बाकी जो इंटरनेट इसके माध्यम से हम फैमिली में रह के भी फैमिली से दूर हो रहे हैं। हमें फैमिली टाइज को मजबूत, मैं जितने भी अपनी 25 साल के तजुर्बे से कह रहा हूँ या जितना भी मैंने इस क्षेत्र में पढ़ा है, कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है, जो परिवारों के बीच में संवाद है, कम्युनिकेशन है, डायलॉग है, वो ख़त्म हो रहा है। ये डायलॉग दोबारा से हम अपने घर में, चाहे डिनर के टाइम पे, ब्रेकफास्ट पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे स्कूल जाना है, फादर को ड्यूटी पे जाना है, लेकिन एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स वी शुड सिट टुगेदर एंड हैव आवर मील्स टुगेदर, और हम बात करें, उन बच्चों के साथ बात करें। और ज़रूर ये कहना चाहूँगा, हर बार पढ़ाई लिखाई के बारे में ही बात ना हो, जनरली उनके साथ मजाक करें, उनके साथ बोले चाले, उनकी सुने, अपनी ही ना सुनाएं, तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को इस नेगेटिव वे में जाने से रोक सकेंगे। धन्यवाद।